Please begin. Okay, sir. So, good afternoon, everyone. I hope you all are well at home and safe. Today, we arrange a webinar on a topic of sales and business development. We have a guest, Mr. Arpit Jaiswal, who is an international sales manager in Matrix Cosmec, Vadodara. So, he was a Parul Alumni also, 2014 batch pass out from Diploma Engineering, PITDS. So, I welcome you, Mr. Arpit Jaiswal. Hope you will enjoy this session. Mr. Arpit Jaiswal, sir, you can continue. Yeah, thank you, Jiva. Uh, thank you for giving me this opportunity, and thanks a lot to Parul University that they have given me this opportunity. It's really great that when you get a chance to give back something to your alma mater or do something for your alma mater. I'm very grateful to Parul University. So I'll just start with my presentation here. Just hold on a second, meanwhile I share my screen. And there are no rules in this presentation or in this thing. If anyone have any question, they can ask me at the same time, and meanwhile we can give direct answers to them. So yeah, let's begin. So as the session says that we are going to discuss about sales and business development. Just a quite information I need from Jiva. Am I audible and is my screen visible to everyone? Yes, sir. You are Oh, audible and our skin is visible, sir. that's great. That's great. So let's begin. So why, when we are talking about sales and business development, this is totally a commercial thing. That is not a part of engineering. But we all know that whenever an engineer creates something or whenever an engineer invents something, they need to sell it, they need to create a market for it, and for that sales and business development is required. And I must say, for any entrepreneur or any engineer or anyone who is willing to start a business soon after college or soon after working for some years, and if they wish to start a business, they must know about sales and business development. This knowledge is not limited to someone uh, who is um, who is into sales and business development. It's for everyone. Everyone should know how to sell, how to understand market, and how to develop their business or how to develop their market. Without wasting a time on it, uh, again I'm just repeating some rules that you can ask any question anytime. If anyone has any query, if they want to know anything about mm, sales, any topic, they can ask me anytime. And apart Sir, from there is, that, I'm not uh, limited to any language. We'll speak in Gujarati and Hindi too. So let's begin. I believe Hindi will be good, very informative. yes, And sir. so अभी हम लोग हिंदी में बात करेंगे. अभी मैं जब 2014 में, लाइक इन 2014, जब मैं पारुल से आई जब मैं पारुल में फाइनल ईयर में था इन मैकेनिकल, सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन एलएनटी. सो एलएनटी में जस्ट मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. आई वाज हैविंग वेरी जीरो नॉलेज अबाउट अभी क्या करियर में करना है, हाउ वी आर गोइंग टू बिगिन इट. सो इस किस्म का एक सेशन होता है जहाँ पे वी कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा व्हाट काइंड ऑफ फील्ड यू कैन चूज, व्हाट यू हैव टू डू इन सर्टेन फील्ड. तो आपको किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है. नाउ एग्जैक्टली इफ यू आर बिगिनिंग इट, अभी हम शुरू करते हैं, तो आई विल गिव माय क्विक इंट्रोडक्शन. सो दिस इज समथिंग अबाउट मी. एज यू नो माय नेम अर्पित जायसवाल. मैं इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर हूँ मैट्रिक्स कॉमसेक में. मैट्रिक्स कॉमसेक एक ऐसी कंपनी है जो सिक्योरिटी, सर्वेलेंस कैमरा, आईपीपीबीएक्स, टेलीकम्युनिकेशन सॉल्यूशंस बनाती है. नाउ ये सॉल्यूशन सारी इंडस्ट्रीज, सारी कॉर्पोरेट ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं. आप लोग इसकी वेबसाइट पे जाकर और डिटेल निकाल सकते हैं. इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर इज समवन, वो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो इस प्रोडक्ट को, हमारी कंपनी के सॉल्यूशन को बाहर जाकर बेचता है. बाहर मीन्स आउट ऑफ इंडिया. सो जनरली मेरा एक टेरिटरी है दैट इज एशिया पैसिफिक.
जिसमें थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब टेरिटरी आती है ना। इस कंट्रीज में जाकर मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, तो सेल्स मैनेजर इज समवन जो कंपनी का सेल्स देखता है उस रीजन के लिए, दैट इज कॉल्ड टेरिटरी। जो हम लोग आगे जाके समझेंगे कि एक्चुअली किस तरह से बिजनेस रन होता है किसी कंपनी का। एंड दिस आर फ्यू थिंग्स अबाउट मी, क्योंकि अभी हम लोग प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा मेरे बारे में जानना जरूरी है। सो दैट इज आई एम अ बिजनेस डेवलपमेंट एंथुसियास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम माय अर्ली करियर डेज। मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरे पास ये नॉलेज है, मैं बिजनेस डेवलपमेंट में जा सकता हूँ, और मेरा इंटरेस्ट भी बिजनेस डेवलपमेंट में ही था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम मैड फॉर मार्केटिंग। मुझे मार्केटिंग वाली चीजें बहुत अच्छी लगती है। किसी का मार्केटिंग कैंपेन हो गया मुझे अच्छा लगता है, कोई किस किस्म के एडवर्टाइजमेंट करता है मुझे अच्छा लगता है, कैसे मार्केटिंग स्टेजेस होते हैं मुझे वो जानना अच्छा लगता है। तो दैट इज वन थिंग अबाउट मी। आई एम ट्रैवलहॉलिक। अभी सेल्स में है तो आपको घूमना पड़ता है, और लकीली फॉर्चुनेटली मुझे घूमना पसंद भी है। मुझे हमेशा आई लाइक टू बी ऑन रोड, या फिर आई लाइक टू बी ऑन ट्रैवलिंग। सो आई एम ट्रैवलहॉलिक। देन आई एम टॉकेटिव। मैं ज्यादा बातें करता हूँ। अगर आप मेरे साथ कहीं 5 मिनट रुक गए तो मैं 5 मिनट की मीटिंग को 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कर सकता हूँ। सो आई एम टॉकेटिव, मुझे बातें करना पसंद है। नाउ लास्टली इज प्रेजेंटेशन मास्टर। मुझे प्रेजेंटेशन देना बहुत पसंद है। इस किस्म के वेबिनार हो गया, इस किस्म का प्रेजेंटेशन बनाना है, तो ये मतलब आप मुझको रात को उठा के बोलो, आई एम रेडी टू गिव इट, नॉट एन इशू। सो आई एम प्रीटी गुड इन दिस थिंग। नाउ आई एम फर्स्ट, before going into presentation, I should apologize for this thing that आपको weekend पे I have asked to join a webinar on sales and business development. So sorry for that, लेकिन अभी मेरे पास यही विंडो था अवेलेबल ये शेयर करने के लिए आपके साथ नॉलेज। सो आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑन वीकेंड, सॉरी फॉर दैट। नाउ लेट्स बिगिन। why engineering why engineers need sales and business development knowledge? एक इंजीनियर को सेल्स एंड बिजनेस बिजनेस डेवलपमेंट का नॉलेज क्यों होना चाहिए? इंजीनियर है, टेक्निकल थिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो ही हैज टू नो अबाउट टेक्निकल थिंग्स। उसको ड्राइंग्स आना चाहिए, उसको मैथमेटिक्स आना चाहिए, उसको फिजिक्स आना चाहिए, या फिर उसको कोई भी टेक्निकल रिलेटेड चीज उसको समझ में आना चाहिए। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए पर्टिकुलरली स्ट्रेस एनालिसिस के अलावा, या फिर प्रोडक्ट डिजाइन के अलावा, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट जानना क्यों जरूरी है? तो लेट्स सी अब क्यों जरूरी है, हम उसको इस स्लाइड में ही देख लेते हैं। एक इंजीनियर है, ही इज हैविंग अ स्पैनर विथ हिम। सो एक इंजीनियर है, वो प्रोडक्ट इन्वेंट करता है, ही इज इन्वेंटिंग प्रोडक्ट। वो जनरली कोई प्रोडक्ट होता है उसको इन्वेंट करता है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं। जब भी जहां भी नेसेसिटी होती है उस किस्म का प्रोडक्ट एक इंजीनियर मार्केट में लाता है, उसको बनाता है, उसको डिजाइन करता है। देन engineers are into मैन्युफैक्चरिंग। अभी ये सिर्फ पर्टिकुलरली मैकेनिकल इंजीनियर परस्पेक्टिव से है, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट बन गई, अभी सपोज मार्केट में कोई जरूरी है लाइक टाइम ट्रैवलिंग मशीन, या फिर एक हाइपरलूप सिस्टम की जरूरत है जो फास्टेस्ट ट्रैवल कर सके डिस्टेंस को, तो वो एक इंजीनियर इन्वेंट करता है, एक साइंटिस्ट, एक टेक्निकल पर्सन उसको इन्वेंट करता है। हम लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर उसको एनहेंस करते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी 50 साल पहले बन गई या 10 साल पहले बन गई, तो उसको हम लोग एनहेंस भी करते रहते हैं। जैसे जो टेलीविजन सेट, सीआरटी टीवी, जो आप बड़े बड़े डब्बे अपने घर पे देखते थे, मे बी इन योर चाइल्डहुड, तो उससे अभी हम एलसीडी प्लाज्मा टीवी पे आ गए, पतले पतले, तो हम उसको एनहेंस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो एक इंजीनियर का काम ये होता है, चीजें इन्वेंट करना, उसे मैन्युफैक्चर करना, उसे एनहेंस करना। इतना इंजीनियरिंग का रोल है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, लेकिन आज के टॉपिक के लिए हमको उस डिटेल में नहीं जाना है। तो विल मूव टू सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। अब जो एक बंदा इंजीनियर है वो इतने काम करता है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग वाला या सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट वाला क्या करता है? लेट्स सी। दे अंडरस्टैंड मार्केट नीड। वो मार्केट की जरूरत समझते हैं। आज अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं जहां पे लोगों के सर पे बाल नहीं है, और आप वहां कंघी बेचना चाहते हैं या कंघी वहां इन्वेंट करते हैं, तो इट्स नो यूज। तो वो सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट वाला आदमी है, वो ये देखता है कि यहाँ पर क्या जरूरत है। लोगों के सर पे बाल नहीं है, तो जरूरी है कि उनको आप कुछ ऐसा दे जो उनके बाल ला सके वापस। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा चीज जिससे उनके बाल आ सके। तो एक मार्केट नीड जानना जरूरी होता है। सो दैट्स कॉमन एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी मिले। आइडेंटिफाई योर क्लाइंट। आपको अपना क्लाइंट जानना है कि आप किसको अपना सामान
बेच सकते हो। अभी मैं एक प्रेशर कुकर बनाता हूँ, मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपकी मैगी 2 मिनट से आधे मिनट में बन जाती है। अब ये मैगी वाला प्रेशर कुकर में जाके ऑफिस में जाके बेचता हूँ कि सर ये मेरा मशीन है, आप खरीद लीजिए। इट्स नॉट गुड। ये किचन वेयर है, ये एक प्रेशर कुकर है जो किचन में बेचना है, तो आपको जाके जो हाउस होम मेकर है, जो लेडीज है, उनको कांटेक्ट करना है, तो वहां जाकर आप अपना ये प्रेशर कुकर बेच सकते हैं। आर यू गाइस क्लियर? तो आपको एक अपना पोटेंशियल क्लाइंट आइडेंटिफाई करना है, दैट हु कैन बाय योर प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अवर प्रोडक्ट। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि अच्छा अभी विंटर आ रहा है, तो विंटर के हिसाब से अभी लोगों को वार्म क्लोथ्स की जरूरत है, या फिर घर में हीटर की जरूरत है, या फिर गीजर की जरूरत है। तो इस किस्म के प्रोडक्ट हैं, वो सर्दियों में लोगों को जरूरत होती है, लाइक इन विंटर्स। सो इस किस्म के प्रोडक्ट को उस समय पे मार्केट करना चाहिए, उस समय पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर मैं भर गर्मी में लोगों को हीटर बेचूं तो वो नहीं बिकने वाला है, नॉट फॉर 4 मंथ्स, वो समर के सीजन में तो एक भी नहीं बिकने वाला है फॉर श्योर। क्रिएट सेल्स प्रोजेक्शन। हमको सेल्स प्रोजेक्शन बनाना पड़ता है। आज अगर आप मार्केट में कोई चीज नहीं लाते हैं, लेट्स सपोज आप एक ऐसा पंप ले आए जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, आप एक ऐसी ऑटोमोबाइल लाइक इंजन ले आए, सपोज लाइक जनरली हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन देखते हैं, V12, V8, V10 इंजन देखते हैं। आप कुछ ऐसा मोस्ट एफिशिएंट इंजन ले आए जो कार्नोट साइकिल को पूरी तरह फुलफिल करता है और 100% एफिशिएंट है। तो उस किस्म के इंजन को अगर आप महीने में 2 इंजन ऐसे बेच पाते हैं, तो इस किस्म के इंजन को आप साल भर में कितना बेचेंगे? अगर आप वडोदरा में सिर्फ आज 2 इंजन बेचते हैं, कल आप अहमदाबाद में बेचना जा रहे हैं, तो अहमदाबाद में आप कितने बेच पाएंगे, और पूरे इंडिया भर में आप कब तक पहुंचेंगे और कितने टाइम में कितने इंजन बेच पाएंगे? उसको बोलते हैं सेल्स प्रोजेक्शन। जनरली ये कॉर्पोरेट जार्गॉन्स है। जार्गॉन्स मतलब एक कॉर्पोरेट लिंगू है, कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी है जो जनरली लोगों को समझ में आती है। तो सेल्स प्रोजेक्शन नहीं है। सेल्स प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि आज मैं इतना बेच रहा हूं, कल मैं उतना बेच सकता हूं। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। अभी वी अंडरस्टूड के इंट्रोड्यूस किया, एडवर्टाइज भी उसी तरह से अपने प्रोडक्ट को हमको करना है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन आएंगे तो आपको हर मौके पर उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे कोलगेट जब बेचना शुरू हुआ तो कोलगेट वाज जस्ट अ वाइट कलर टूथपेस्ट। आज कोलगेट में नमक है, कोलगेट में मसाले हैं, कोलगेट में चारकोल है, कोलगेट में सब कुछ है। तो हर बार आप एक नया प्रोडक्ट लाते हो तो नए प्रोडक्ट को उस हिसाब से एडवर्टाइज करना पड़ता है। देन सेल्स, डेफिनेटली सेल्स का आदमी है तो उसको सेल्स करना है, उसको रेवेन्यू जनरेट करना है। रेवेन्यू जनरेट करना मतलब कंपनी के अंदर पैसा लाना। सो इन शॉर्ट, these are the responsibilities of engineer and sales and business development executive. हम लोग सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसको एंटरप्रेनर के टॉपिक के अंदर समझ लेते हैं। अगर आपको कल जाकर एक कंपनी खोलना है तो आपने प्रोडक्ट बना दिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया, आपने उसमें इंप्रूवमेंट भी ला दिया, लेकिन जब तक आपको सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट के टर्म्स नहीं पता, सेल्स किस तरह करना है उसके नॉलेज नहीं है, तब तक प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं पाएंगे, तब तक आप उससे प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। Am I clear? Then moving towards the next slide. अभी है which skills are required for business development एंड मतलब कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई भी ऐसा पर्सन हु वांट्स टू ग्रो इन सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, अगर आप अगले साल या फिर जब भी आप कॉलेज पास करके बाहर निकलते हैं, अगर अपनी कंपनी खोलते हैं या फिर किसी कंपनी में सेल्स इंजीनियर बोलते हैं। सेल्स इंजीनियर एक ऐसा टर्म है जो इंजीनियर है, जो कंपनीज मैकेनिकल डिवाइसेस बनाती है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाती है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाती है, उसको सेल करने के लिए उनको सेल्स इंजीनियर लगते हैं। जो आदमी इंजीनियर है और उसको सेल करता है, क्योंकि अगर आपने एक पंप बनाया, आप पंप लेकर मार्केट में गए तो आपको सामने वाले को समझाना पड़ता है ये पंप कैसे अच्छा है। अभी इंजीनियर है तो वो समझा सकता है, इंजीनियर नहीं है तो उसको टेक्निकलिटी उतना समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई देयर आर सेल्स इंजीनियर हु कैन सेल लाइक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और लाइक टेक्निकल प्रोडक्ट्स। तो सेल्स इंजीनियर अगर आपको एक ऐसी प्रोफाइल में जॉब लगती है, आपके प्लेसमेंट होता है जहां पे आपको सेल्स या मार्केटिंग में जॉब लग जाती है एज एन इंजीनियर, तो आपको क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है?
फर्स्टली, कम्युनिकेशन स्किल। यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपको लोगों से अच्छी तरह बातचीत करना आना चाहिए। अभी कम्युनिकेशन स्किल से आप काफी सारी चीजें अपने स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, काफी सारी चीजें आपके कॉलेजेस में भी आप सीखेंगे, तो उसके ऊपर हम ज्यादा अभी इफेक्ट नहीं देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल एक जरूरी एस्पेक्ट है एक सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट वाले बंदे का। एक्टिव लिसनिंग पावर। सिर्फ बोलना बोलते नहीं रहना है, आपको सुनना भी है। जितना अच्छा आप सुन सकते हैं उतना अच्छे आप सेल्स कर सकते हैं। देन यू हैव प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड। जिस तरह का आपका जिस तरह के क्लाइंट के पास आप जाते हैं, जिस तरह के यूजर के पास आप जाते हैं, उसके प्रॉब्लम आपको समझना पड़ता है, उसको सॉल्यूशन देना पड़ता है। अगर किसी क्लाइंट के पास गए, उसने बोला कि भाई मेरे को एक ऐसा फिल्टर चाहिए जो 10 गैलन पानी को फिल्टर कर सके, ओके, मैकेनिकल फिल्टर चाहिए। सो हाउ यू डू दैट? अगर किसी कंपनी में गए, उसको एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए 10 गैलन के लिए, और आपके पास सिर्फ वैसे ही मशीन है या वैसे ही वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है जो सिर्फ 7 गैलन को कर सकते हैं या फिर जो सिर्फ 5 गैलन को कर सकते हैं, तो आप उसको कैसे बेचेंगे? आप उसको कहेंगे कि भाई दो ले लो, या फिर अपनी साइकिल में आप थोड़े चेंजेस कीजिए कि 10 गैलन की बजाय सिर्फ 7 गैलन एक बार में पास हो या 5 गैलन एक बार में पास हो, तो आप मशीन को 24/7 यूज में लाकर अपना 10 गैलन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड। आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अदर थिंग इज प्रोस्पेक्टिंग, डिस्कवर और हंटर। हंटर या डिस्कवरर का काम ये होता है कि वो चीजें ढूंढता है, वो चीजें पता लगाता है। उसी तरह से अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं एज अ सेल्स पर्सन, सो यू नीड टू फाइंड योर क्लाइंट्स, यू नीड टू फाइंड योर यूजर। जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल था, अगर आप कुछ ऐसा कंघी बेच रहे हैं लाइक कोम, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कंघी का इस्तेमाल कौन लोग करते हैं, हमको कहाँ कहाँ जाके बेचना है। सो दैट इज वेरी सिंपल, आई कैन एक्सप्लेन। प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। those who have not yet opened, जिसने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं खोला है, आप प्लीज उसको जाके खोलिए। अपने आप के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाइए कि आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करेंगे। अगर आपके प्लेसमेंट होने वाले हैं तो आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। अपना फोटो डालिए, अपने स्किल्स डालिए, अपनी हॉबीज डालिए, अपना एजुकेशन डालिए, आप में क्या अच्छा है, आप में क्या बुरा है वो डालिए, अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए और अपना एक प्रेजेंटेशन बनाइए। प्रेजेंटेशन स्किल्स आर मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर एनी सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट पर्सन। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता है, सो आपको वो सीखना पड़ेगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप जितनी जल्दी प्रेजेंटेशन स्किल सीखेंगे, आप उतनी जल्दी चीजें प्रेजेंट कर पाएंगे। नाउ यू हैव टू हैव बिजनेस एक्यूमेन। आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। हर चीज में आपको बिजनेस ऐड करना पड़ेगा। आप मामूली शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं ना, तो आपको पता है बिग बाजार में कुछ ग्रोसरीज है वो इस रेट पे मिल रही है, डी मार्ट में इस रेट पे मिल रही है। अगर मैं उसको आके वेनसडे को खरीदता हूँ तो बिग बाजार में मुझे एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सो आप 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन अपना इन्वेस्टमेंट रोक लो और उसको जाके वेनसडे को खरीदो, तो आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा, आप अपना पैसा उतना बचा सकते हैं। सो दैट इज बिजनेस एक्यूमेन। हर चीज में आप बिजनेस एप्लीकेशन लाइए, किस तरह से आप ज्यादा चीजें सेल कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना रिसोर्सेस बचा सकते हैं। रिसोर्सेज दैट मीन्स अपनी मेहनत, रिसोर्सेज दैट मीन्स अपना पैसा। तो आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना है, आपको ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है जहां पर आप हमेशा अपने रिसोर्सेस और अपने मनी सेव कर सकें। इसके अलावा यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। हर एक क्लास में, हर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में, हर एक एक्यूमेन में दो किस्म के लोग होते हैं। फर्स्ट इज बुक स्मार्ट, दैट मीन्स किताबी कीड़ा या फिर आई कैन से किताब का नॉलेज रखने वाला। अदर वन इज अ स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो बताती है कि जिसको स्ट्रीट का नॉलेज है, जिसको हुड समझ में आता है, जिसको मार्केट समझ में आता है, जो स्ट्रीट पे लोगों को समझता है, दैट इज स्ट्रीट स्मार्ट। आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा। हर एक क्लास में टॉप बेंचर्स होते हैं जो फर्स्ट बेंचेस पे बैठते हैं, एंड देन देयर आर बैक बेंचर्स। नाउ आई वाज द वन हु यूज्ड टू सिट एट द फर्स्ट बेंच। मैं पहली बेंच पे बैठता था, बट आई नो द रूल्स ऑफ स्ट्रीट। मुझे स्ट्रीट के रूल्स पता है। आई वॉज स्ट्रीट स्मार्ट। सो स्ट्रीट स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है। स्ट्रीट स्मार्ट की क्वालिटी क्या होती है?
ये लोग को सब कुछ पता होता है कॉलेज में क्या हो रहा है, कॉलेज में कहाँ कैसे काम करते हैं, कॉलेज में कब से छुप के निकलने वाला गेट कौन सा है, ये स्ट्रीट स्मार्ट बच्चों को पता होता है। उनको ये पता होता है कि कॉलेज में कितनी कैंटीन है, कौन से रेट में क्या क्या चीजें मिलती है, कॉलेज से किस तरह बाहर निकलते हैं, उनके पहचान, उनका नेटवर्क कॉलेज में काफी अच्छा होता है। दोज आर स्ट्रीट स्मार्ट। आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर आपको सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट में आना है तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा। इन सिंपल टर्म आपको शाना बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी लिटिल शाना व्हेन यू आर इनटू सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। दिस इज द एज सिंपल आई कैन गो। देन यू हैव टू बी अ रिसर्चर। आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपके पास ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो रिसर्च करती हो हर चीज के लिए। सो यू हैव टू बी अ रिसर्चर ऑल्सो। स्टोरी टेलर। आपको बातें बोलनी है, आपको लोगों को एक्वेंट करना है, आपको लोगों को अपने से एंगेज करना है, तो आपको स्टोरी टेलिंग की चीजें होनी चाहिए। अगर मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ अपना थोड़ा पास्ट भी इंक्लूड कर रहा हूँ, थोड़ा फ्यूचर भी इंक्लूड कर रहा हूँ, पर्सनली भी अपने आप को आपके साथ इंक्लूड कर रहा हूँ, तो दैट इज काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग। आप उसको लोग किससे सुनाते हो, आप लोगों को एग्जाम्पल्स देते हो, आप लोगों को अपने बातों में एंगेज करते हो, तो यू नीड टू हैव दैट स्किल ऑल्सो। देन यू हैव टू बी गैजेट एंड टेक्नो फ्रेंडली। सेल्स की जॉब में यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, वेरी यूज टू विथ टेक्नोलॉजी। मैं काफी सारे लोगों को देखता हूँ जो व्हाट्सएप फेसबुक चलाना जानते हैं, बट दे स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट्सएप के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, अभी फेसबुक पे कौन सा नया फीचर आया है, अभी व्हाट्सएप पे आप कितने लोगों को कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं। तो इस किस्म का नॉलेज होना एक बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स पर्सन में एक बहुत ही रिक्वायर्ड चीज है। बिकॉज ये आपकी कनेक्टिविटी बढ़ाती है, ये आपको एफिशिएंट बनाती है, और ये आपको एक्टिव बनाती है। नाउ स्टोरी टेलर और टेक्नो कमर्शियल या फिर स्ट्रीट स्मार्ट, ये सिर्फ इसी फील्ड के लिए रिक्वायर्ड नहीं है ना, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट। यू हैव, इफ यू वांट टू ग्रो इन फ्यूचर, यू हैव टू हैव दोस स्किल्स। ये स्किल्स तो जरूरी ही है ना। अभी हम लोग गुजराती है तो हम लोग के पास, सबके पास बिजनेस की स्किल्स तो होती है, थोड़े बहुत जो है उनको पास तो बिजनेस अच्छी तरह समझते ही हैं। अपना पैसा किस तरह बचाना, अपना रिसोर्सेज किस तरह बचाना, हम गुजराती लोग अच्छी तरह जानते हैं। सो ये स्किल्स होती हैं, और इस स्किल्स को आपको डेवलप करना है और एनहेंस करना है। देन यू नीड टू हैव नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब जान पहचान। कितने लोगों को आप जानते हो, कितने लोग आपको जानते हैं। आज आप वडोदरा में हैं तो आपके वडोदरा में 100 कांटेक्ट है। आज आप अहमदाबाद में गए, वहां पे आपको 10-15 लोग जानते हैं। आपके कॉलेज के कितने फ्रेंड्स आपके साथ हैं, आपके स्कूल के कितने फ्रेंड्स आपके साथ हैं, आपकी ट्यूशन के कितने फ्रेंड आपके साथ हैं, आपके घर के आसपास रहने वाले कितने लोग आपको जानते हैं, आप से बातें करते हैं, आप उनके कितने कांटेक्ट में हैं। दैट इज नेटवर्किंग। आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। नाउ नेटवर्किंग में अगर आप, यू कैन सी ऑन द प्रेजेंटेशन स्लाइड, देयर इज किंग इन इट। सो जिसका नेटवर्क ज्यादा अच्छा है, दैट इज किंग इन अ मार्केट। आपको कुछ भी करना है, आगे जाके नया बिजनेस खोलना है, या फिर आपको आगे जाके जॉब चाहिए, या फिर अगर आपको आगे जाके नई जॉब ढूंढनी है, तो जितना अच्छा आपका नेटवर्क होगा उतना अच्छा आप जॉब, उतनी जल्दी आप जॉब ढूंढ पाओगे। नेटवर्किंग के लिए आपको लोगों से मिलना है, दैट इज वन थिंग। नेटवर्किंग के लिए नीड टू हैव लिंक्डइन अकाउंट। सोशल मीडिया तो है ही, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हम वहां पे लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं, लोगों के बारे में जान रहे हैं, डूइंग इट। बट ऐसे कितने लोग हैं जो लिंक्डइन पे नहीं है। इफ यू आर नॉट ऑन लिंक्डइन, राइट आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन, अभी 2 बजे आई विल बी फिनिशिंग इट, 2:30 बजे तक आप लिंक्डइन खोलिए और मेक योर अकाउंट। क्योंकि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए, या फिर एक एनी एम्प्लॉय, या फिर एनी एंटरप्रेनर, दे नीड टू हैव अ लिंक्डइन अकाउंट। जिसको लिंक्डइन नहीं पता है, आप उसके बारे में जानिए और अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाइए। दिस इज अ कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म जहां पे यू कैन इंटरेक्ट विद कॉर्पोरेट पीपल। आप ये जान सकते हैं कि रिलायंस में सीनियर मैनेजर कौन है, रिलायंस में मैन्युफैक्चरिंग में कौन है, रिलायंस में प्रोडक्शन में कौन है, टाटा कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर ऑफ डिजाइन कौन है, L&T लार्सन एंड टूब्रो में प्रोडक्ट मैनेजर कौन है। ये सब आप लिंक्डइन पे जान सकते हैं, और लिंक्डइन से आप उनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। लाइक व्हेन इन 2014 जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था पारुल से, आई जॉइंड इन L&T पावर नॉलेज सिटी में। जब मैंने वहां ज्वाइन किया, आई न्यू लाइक फ्यू पीपल अराउंड मी। जब मैंने ज्वाइन किया, अपना ऑफिस ज्वाइन किया, आई न्यू फ्यू पीपल अराउंड मी। 5-10 लोगों को जानता था कि भाई ये देवजीत घोष है, इसका नाम मितेश है, इसका नाम महेश है, सुरेश है। मैं इन लोग को जानता था, ये मेरे साथ काम करते थे।
लेकिन जब आप लिंक्डइन पे देखते हैं तो यू गेट टू नो कि देवजीत घोष है तो उस देवजीत घोष ने कितना एजुकेशन, वो कहाँ से पढ़ा है, उसने इससे पहले कहाँ काम किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लिंक्डइन पे डालते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं और लोगों की इन्फॉर्मेशन खुद आप कलेक्ट करते हैं। सो लिंक्डइन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट रीजन। सो अगर लिंक्डइन आपके पास हो तो जो 10-15 लोग या फिर आपके फ्लोर पे, आपकी बिल्डिंग में जितने लोग आपके साथ काम करते हैं उनको आप जान सकते हैं, तो लिंक्डइन से आप उन सभी लोगों को जान सकते हो जिनसे आप आज तक मिले नहीं हो, और उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। सारे सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव को या फिर जो स्टूडेंट आगे जाकर इस फील्ड में जाना चाहता है या अपना बिजनेस खोलना चाहता है, उसको लिंक्डइन अकाउंट होना इज 110% रिक्वायर्ड। अगर मार्केट का किंग बनना है देन यू हैव टू हैव लिंक्डइन अकाउंट एनीवेज। देन फ्लेक्सिबल टू ट्रैवल। अभी सेल्स पर्सन है तो यू हैव टू ट्रैवल। आप एक जगह पे ऑफिस में बैठे बैठे सेल्स नहीं कर सकते, यू हैव टू ट्रैवल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको सारी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए बाहर जाना पड़ता ही है। जो हमको रेगुलर कॉल्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, बैंक अकाउंट खुलवा दो, सर हमारी ये सर्विस है ये खरीद लो, तो ये ऑफिस में बैठ के होता है, ये कॉलिंग से होता है, दैट इज कॉल्ड कोल्ड कॉल, जिसके बारे में आगे जानेंगे। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो हमको अलग अलग कंपनीज में जाके लोगों से मिलना पड़ता है, नेटवर्क बनाना पड़ता है और तब जाके बेचना पड़ता है, जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो यू हैव टू बी अ ट्रैवलर और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अभी जिनको ये सब चीजें पसंद है या जिनमें ये सारी स्किल्स है, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोफाइल है। आंख बंद करके यू कैन गो, आप बहुत ग्रो करोगे, आप बहुत आगे जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। और लास्टली हमने सारी स्किल देख लिया। अभी ऊपर ऑन द राइट साइड यू कैन सी एक्सेल। ये इन सभी स्किल्स का फादर है। लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो ये पापा है। आप कुछ भी करो, प्रोडक्शन मैनेजर बनो, परचेस मैनेजर बनो, कॉलेज प्रोफेसर बनिए, स्टूडेंट रहिए, कॉल सेंटर ज्वाइन कीजिए, सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट में आइए, खुद की कंपनी डालिए, जो कुछ भी करिए, एक्सेल सीखना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। तो एक्सेल अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, लर्न इट। टाइम है, लर्न इट। एक्सेल जितना अच्छा आपको आता होगा उतना जल्दी आप ग्रो करेंगे, उतना जल्दी आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे, उतना जल्दी आप अपना काम मैनेज कर पाएंगे। किसी भी फील्ड में एक्सेल इज मोर देन 1000% रिक्वायर्ड। मतलब एक्सेल तो जरूरी है ही। ये स्किल ऐसी है जो आपको डेवलप करके इंप्रूव करके आप अपने आप को बहुत आउटशाइन कर सकते हैं। मैंने देखा है कई सारे एम्प्लॉयज को, जब मैं एलएनटी में था या जब मैं मैट्रिक्स में हूँ, आई कैन सी एक्सेल का कितना यूज है। एक्सेल इज having a lot of uses, a lot of requirement in any corporate office. So Excel is the father of all skills required by any professional. तो ये तो सीखना ही है। Now we are moving forward to what is sales job profile. ओके हमने स्किल देख लिया, क्या स्किल्स जरूरी है, लेकिन अभी प्रोफाइल क्या है, सेल्स की जॉब में करना क्या होता है। लेट्स सी। इट इज अ जॉब इन विच यू रिप्रेजेंट योर कंपनी। अभी मैं बोलता हूँ कि आई एम अर्पित जायसवाल, आई एम इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर। तो कहाँ? मैट्रिक्स कॉमसेक 2014 में व्हेन आई वाज इन एलएनटी। Again, if you ask me what you are doing, so I'm business development executive in L&T. So you are representing your company. So your brand or your product. आज अगर कल आप अपनी जाके कंपनी बनाते हैं, लेट्स सपोज ayc.com, AYC प्राइवेट एंटरप्राइज और AYC लिमिटेड कंपनी। सो आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई आई एम अ सीईओ और आई एम अ फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। सो अ सेल्स पर्सन इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरी कंपनी। आप अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा सेल्स की जॉब करने वाले दे आर ऑलवेज इन सूट्स, दे ऑलवेज वेयर फॉर्मल्स, काफी वो प्रेजेंटेबल दिखना चाहते हैं ताकि वो अपने ब्रांड को अपने से जोड़कर उसको अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकें। यू चेस टारगेट। सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट एक टारगेट चेजिंग जॉब है, जहां पे आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतनी चीजें बेचनी है, या फिर आपको इतने रुपए की या फिर इतने रेवेन्यू की चीजें आपको बेचनी है। मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जो सबको समझ में आ जाए, इसीलिए तो आपको इतने रुपए की चीज बेचनी है। ये है टारगेट चेजिंग जॉब। इसमें आपको टारगेट हमेशा फॉलो करना ही है। टारगेट के बिना सेल्स की जॉब नहीं होती। और टारगेट हर जॉब में होता है। आपको हर जॉब में डेडलाइन मिलती है। अगर आप प्रोडक्शन में गए तो आपको कहा जाता है कि
आप खुद प्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन आप जिससे करवाते हैं, वर्कर से या फिर आपके टेक्नीशियन से, तो आपको टारगेट रहता है कि एक दिन में, इस 8 घंटे की जॉब में आपको 100 प्रोडक्ट बनवाने हैं या फिर इतना काम इतनी डेडलाइन में करना है। ये हर जगह है। ओके, यहाँ तक कि हमारे फैकल्टीज को भी टारगेट रहता है, हमारे प्रोफेसर्स कॉलेज को, उनको भी टारगेट है कि आपको ये सिलेबस इतने टाइम में कंप्लीट करना है। सो टारगेट इज एवरीथिंग। आपको जीवन में टारगेट सेट करना है। इन योर लाइफ यू मस्ट हैव अ टारगेट कि इस इतने तक मैं ये कर लूंगा, इतने तक मेरे पास कार होगी, इतने तक घर होगी, इतने तक मेरे बीवी बच्चे सेटल हो जाएंगे, मैं संन्यास ले लूंगा। तो दैट इज योर टारगेट, यू हैव टू सेट टारगेट। और ये सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट एक टारगेट बेस्ड जॉब है, दैट इज फॉर श्योर। यू हैव टू नेगोशिएट। आपको नेगोशिएशन करना है। अभी कोई चीज खरीदते हैं तो हम लोग नेगोशिएट करते हैं ना, कि अच्छा ये शर्ट 1200 में दिया, 3 शर्ट लूंगा, 1000 रुपए में देगा क्या? तो दिस आर नेगोशिएशन थिंग। सो यू नीड टू हैव दिस नॉलेज। अगर नेगोशिएशन स्किल्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे आज आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो नेगोशिएट करते हैं, जब आप कोई चीज बेच रहे होते हैं तब अभी आपको नेगोशिएट करना होता है। अगर आपका क्लाइंट आपको, अगर आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर आपको बोलता है कि ओके अर्पित, सी आई लाइक योर पंप इज रियली फाइन, आई रिक्वायर इट, मुझे इसकी जरूरत है, बट मेरा इतना बजट नहीं है, मैं $1000 अभी खर्च नहीं कर सकता, आई कैन स्पेंड ओनली $950, यू गिव मी 50% डिस्काउंट। सो यू नेगोशिएट, सर 50% डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा, सॉरी लाइक $50 का डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा, लेकिन यू हैव टू बाय टू। अगर आप 2 मशीन लेते हैं तो मैं आपको कर दूंगा, और आपको आगे जाके इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही, आपको 2 मशीन की रिक्वायरमेंट है, आप दोनों एक साथ ले लीजिए, तो मैं आपको $50 का डिस्काउंट दे दूंगा। सो दिस आर सम नेगोशिएशन स्किल्स यू नीड टू डेवलप इन योर सेल्स प्रोफाइल। यू मेक सेल्स प्रोजेक्शन। आपको सेल्स प्रोजेक्शन बताना है कि कितना सेल्स होगा, कितना मैं भी कर रहा हूँ, इसके हिसाब से मैं आगे कितना कर पाऊंगा। इसमें भी एक्सेल की जरूरत पड़ती है, इसमें भी प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है, इसमें फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ती है। सो यू नीड टू हैव दोस स्किल्स। यू हैव टू डू दैट ऑल्सो, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यू जनरेट रेवेन्यू, ए मनी। तुम कंपनी के लिए पैसा कमाते हो, यू आर अर्निंग मनी फॉर योर कंपनी। अगर आपकी कंपनी, अगर आपको बाहर भेजते कोई चीज बेचने के लिए, सो उस कंपनी के लिए आप पैसा कमा के देखते हो, यू जनरेट रेवेन्यू फॉर योर कंपनी। सो दिस आर सम profiles, or these are some tasks you do in sales job. Now abhi we have passed like 30 minutes. If anyone has any question, or if you can forward to Jiva can ask me, we can discuss it at this moment. Or if there is no question, we are moving forward to the next slide, which is business development job profile. अभी हमने सेल्स के बारे में जाना, व्हाट इज बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट वाला आदमी क्या करता है। नाउ सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट आर सेम, at the same time it's also different job profile. Now you have to promote your product and service. अगर आप business development में गए, business development is just another word for marketing. आपको marketing करना है, अपना product market करना है, आपके अपना product introduce करवाना है लोगों को. So what you do, you have to promote your product and services. अगर आप कोई product बेच रहे हैं या कोई service बेच रहे हैं, तो you have to promote it. Now product and services are two different things. अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दैट मीन्स आप मार्केट में जाकर एक मैकेनिकल पंप या मैकेनिकल मोटर बेच रहे हैं। ओके, सर्विसेज ऐसी है कि अगर आपने मार्केट में वो पंप या मोटर बेच दिया है या किसी के पास वो ऑलरेडी है, तो आप उसको सर्विस करके देते हैं। लाइक आप उसको मेंटेनेंस करके दे देंगे, आप उनके लिए काफी सारी और चीजें करके देते हैं। जस्ट लाइक सर्विस बेस्ड जॉब क्या होते हैं, बता देता हूँ। सर्विस बेस्ड जॉब इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल ये होती हैं जहां पे आप क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं, थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्पेक्शन, या फिर एनडीटी टेस्ट, या फिर आपका दूसरे किस्म के टेस्ट आप उनको वो करके देते हैं। दैट इज सर्विस बेस्ड जॉब, जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। सो दैट यू आर थर्ड पार्टी जो उस कंपनी में जाके क्वालिटी टेस्ट करती है। यू इम्पार्ट नॉलेज। आपको कई जगहों पर हमारी फैकल्टीज भी कई इंडस्ट्रीज में जाकर दे गिव नॉलेज टू द एम्प्लॉयज, आपको एक सॉफ्ट स्किल्स या फिर एक नॉलेज देती है इंजीनियरिंग का, तो दैट इज ऑल्सो सर्विस। हम किसी कंपनी को मेंटेनेंस के लिए दे देते हैं, सभी कंपनीज अपना मेंटेनेंस डिवीजन नहीं रखती है, दे हायर थर्ड पार्टी मेंटेनेंस स्टाफ, तो उसको हम थर्ड पार्टी सर्विसेज कहते हैं। तो दैट इज सर्विस बेस्ड, जहाँ पे आप फिजिकल कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, बट फिजिकली जाकर उनको सर्विस देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको
एनरिच करते हैं, तो दैट इज सर्विस बेस्ड product, and that is another thing is a hard physical product. So these are two kind of product which you promote in business development or which you sell in your sales profile. You need to find market to sell. आपको अपना मार्केट ढूंढना है. ये चीज रिपीट हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको अपना मार्केट ढूंढना है, क्या ये प्रोडक्ट कहाँ बिकेगी. अभी आप सपोज आप ऐसी चीज बेच रहे हैं जो किसी भी बोट को, लाइक शिप को स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन आप ये बेचने जा रहे हैं कश्मीर में. कश्मीर में शिकारा है, नो डाउट. अगर ये बेचने जा रहे हैं आप दिल्ली में, सो दिल्ली में वहां नदी भी ज्यादा नहीं है, वहां पे ओशन भी नहीं है, वहां पे कोई किसी के पास बोट ही नहीं है. सो आप उधर जाके ये बोट का मशीन या बोट का एनहेंसमेंट किट वहां नहीं बेच सकते. यू हैव टू सेल इट इन गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, चेन्नई जाइए, उड़ीसा जाइए, वेस्ट बंगाल, कोलकाता जाइए, बंगाल जाइए, तो वहां पर जाकर अपना ये प्रोडक्ट आप बेच सकते हो. तो यू नीड टू फाइंड योर मार्केट. आज जो मैंने चीज बनाई वो कहाँ जाकर बिकेगी. अगर आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिससे लाइक सपोज यू डेवलप सम केमिकल, तो ये केमिकल आप कहाँ जाके बेचेंगे. यू हैव टू गो टू अंकलेश्वर. अंकलेश्वर में सारी केमिकल प्लांट्स है, तो वहां जाकर आप ये बेच सकते हैं. उसी किस्म से आपकी कोई भी मशीन जाके उस रीजन में बेच सकते हैं जहां पर इंडस्ट्रीज लगती है. सो आपको अपना मार्केट ढूंढना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट डिमांड. मार्केट की डिमांड क्या है. आज हम लोग देखते हैं टच स्क्रीन मोबाइल फोन चल रहे हैं. ओके, दिस आर स्मार्टफोन्स. अगर इस मार्केट में लोगों की डिमांड है कि हमको और अच्छा स्मार्टफोन दे, बेजललेस स्क्रीन दे, अच्छे और ज्यादा कैमरास दे, 5 कैमरास 10 कैमरास दे, तो उनको अच्छा लगेगा. दोज आर मार्केट डिमांड. और उसी के बीच में मैं अगर नोकिया 3310 लाकर बेचता हूँ, सो वो बेचना थोड़ा डिफिकल्ट है, ज्यादा लोग नहीं खरीदेंगे. तो अपना मार्केट डिमांड समझिए. आजकल लोगों को क्या जरूरत है, आपको वो प्रोडक्ट बना के बेचना है. ये सब चीजें आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, इफ यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, इफ यू कंप्लीट योर एमबीए, अगर आप आगे पढ़ते हैं और एमबीए कंप्लीट करते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट डिमांड क्या है ना. यू विल प्लान स्ट्रेटेजी फॉर बिजनेस ग्रोथ. आपको अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है, वो बिजनेस डेवलपमेंट वाला स्ट्रेटेजी बनाता है. यू हैव टू रन मार्केट कैंपेन. आपको अलग अलग मार्केट कैंपेन रन करने पड़ेंगे. सो आपको मार्केट कैंपेन रन करने पड़ेंगे. जैसे कि सबका मार्केट कैंपेन होता है कि भाई इस सीजन में हम इस चीज को बेचेंगे, उस सीजन में उस चीज को बेचेंगे, इस लॉट ऑफ पीपल, इस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम ये चीज बेचेंगे. तो दैट इज मार्केट कैंपेन. जो आप अलग अलग कैंपेन रन करते हैं उसके बारे में हम आगे जानते हैं. नाउ हियर यू कैन सी एक कार्टून है जो चीजें ढूंढ रहा है. सो आप डेफिनेटली मार्केट सर्च कर रहे हैं, मार्केट ग्रो कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी अ डिस्कवरर हियर. सो दैट इज वन थिंग. ओके, हाउ डज सेल्स एंड बीडी वर्क. सेल्स एंड बीडी किस तरह से काम करता है, लेट्स सी. सो दिस इज अ फनल. सेल्स फनल, इसको फनल बोलते हैं. फनल एक ऐसी चीज है जो आप किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको फनल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उस पर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए. लेकिन सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में फनल इज वेरी कॉमन थिंग. डेली बेसिस पर आपके बॉस आके आपको पूछ सकते हैं कि अच्छा हाउ इज योर फनल, सो हाउ इज योर फनल गोइंग ऑन. आपस में क्लाइंट बात करते हैं, मेरा फनल स्ट्रांग है, मेरा फनल वीक है. सो दैट इज अ कॉर्पोरेट जार्गन, बट वी विल नो इट टुडे. ये एग्जैक्टली किस तरह होता है, कैसे होता है, सो विल अंडरस्टैंड इट नाउ. सो फर्स्ट थिंग दैट इन कम्स इन फनल इज अवेयरनेस. यहाँ पे मार्केटिंग का काम है. मार्केटिंग के लोग क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं. लाइक सपोज अभी मैंने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो पानी पे चलती है, तो इसको पहले मार्केट में लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि भाई अर्पित जायसवाल की कंपनी है जो ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है जो पानी से चलती है. तो आपको लोगों को मार्केट में अवेयर करते हैं, ये प्रोडक्ट इतने में बिकेगा, ये मोटर बाइक्स अर्पित 5,000 रुपए में बेच रहा है या 10,000 रुपए में बेच रहा है. तो आप मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. सो दैट इज कम्स इन मार्केटिंग थिंग. बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है. यू क्रिएट इंटरेस्ट. लोगों में इंटरेस्ट जमा करते हैं. अभी हम लोगों को आईफोन चाहिए नहीं चाहिए हमको पता नहीं है, लेकिन आईफोन वाला हमको ये अवेयरनेस देता है, हमें इंटरेस्ट जगाता है कि देखो आईफोन लोगे तो आप ये पर्टिकुलर इमोजी बना सकते हो. आईफोन लोगे तो आपके फोन में वायरसेस नहीं आएंगे. आईफोन लोगे तो एक सिक्योर्ड आपको लाइक एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम मिलता है जिसमें आप काफी सिक्योर्ड है.
आईफोन का खुद का यूनिवर्स है, आईफोन के साथ आपको ये कैमरा मिलेगा, ये मिलेगा, आपको पता नहीं आपको जरूरत है कि नहीं है, लेकिन वो आपको इंटरेस्ट जगाते हैं कि एक आईफोन लूंगा तो मैं सिक्योर्ड रहूंगा, मेरा डेटा कहीं जाएगा नहीं, एक सिक्योर सिस्टम में मैं रहूंगा। सो दैट इज क्रिएटिंग इंटरेस्ट। ये भी बिजनेस डेवलपमेंट वाले या मार्केटिंग वाले करते हैं। फिर देन इट कम्स, अगर क्लाइंट को इंटरेस्ट आ गया, क्लाइंट ने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ भैया मुझे, मेरा एंड्रॉइड फोन है, उसमें से चाइनीज एप्लीकेशन काफी सारा डेटा चुरा रही है, मुझे एक सिक्योर्ड नेटवर्क में जाना है, तो यू गो फॉर एंड्रॉइड। ओके, यू आर गोइंग फॉर एंड्रॉइड, आपने अपना इंटरेस्ट, सॉरी, यू आर गोइंग फॉर आईफोन। सो आपने अपना इंटरेस्ट बताया कि अच्छा मेरा इंटरेस्ट है एप्पल या फिर आईफोन बाय करने में। सो दैट इज इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट के बाद जो अगला चीज आता है, दैट इज कम्स इनटू सेल्स प्रोफाइल। यहाँ पे सेल्स का आदमी आता है, मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट वाले का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट के बाद इट कम्स टू सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन क्या करता है, कंसीडर करता है, हाँ सर आपको चाहिए, किस किस्म का चाहिए, अच्छा आपके पास बहुत ज्यादा फोटोज हैं, अच्छा आप बहुत सारे वीडियोस भी लेते हैं, आप बहुत ज्यादा घूमते हैं, आपको बहुत काफी अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, आपको काफी अच्छा कैमरा चाहिए, आपको फोटो फ्रीक है, आपको हर जगह सेल्फी लेना पसंद है, तो सर आप ये 64 GB वाला आईफोन छोड़ के यू बाय दिस 128 GB वाला आईफोन। तो इसमें आप काफी सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप किसी इंडस्ट्रीज में जाते हैं, किसी कंपनीज पे जाते हैं जहां पे किसी पर्टिकुलर मशीन की रिक्वायरमेंट है, लेट्स सपोज पैकिंग मशीन, जो भी आप, जितना भी चीजें आप खाते पीते हैं, जितना भी चीजें आप कंज्यूम करते हैं, या फिर आपके कंज्यूमर गुड्स, दैट इज कॉल्ड एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो जितनी भी चीजें एफएमसीजी में आती है, फूड इंडस्ट्री में आती है, वो एक पर्टिकुलर पैकेजिंग में आती है। अंडरस्टूड। अगर हम लोग देखते हैं मिल्क, अमूल का दूध है, वो एक प्लास्टिक की थैली में आता है, क्योंकि वो डेली कंजप्शन में है। आज आप सुबह खरीदते हो, शाम तक उसको कंज्यूम करके दूध, या तो फिर आपको कंज्यूम कर लेते हो तो फ्रिज में रख देते हो, तो एक प्लास्टिक की थैली में आता है। अमूल की कुछ और प्रोडक्ट्स आते हैं जो टेट्रा पैक्स में आते हैं। नाउ ये टेट्रा पैक्स में मशीन, प्रोडक्ट को पैक करने के लिए मशीन आते हैं। सो सपोज अमूल वाला ऐसा सोचता है कि यार मुझे अपना दूध बाहर एक्सपोर्ट करना है, या फिर एक रस मलाई है, या फिर एक खीर है जो अमेरिका में लोगों को नहीं मिलती, तो मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं खीर कैसे बेचूं। तो वो खीर प्लास्टिक की थैली में डाल के नहीं बेच सकता, क्योंकि जब तक वो अमेरिका पहुंचेगा तब तक खीर का पता नहीं क्या हो जाएगा। सो इन दैट सीन यू रिक्वायर रिलायबल पैकिंग, टेट्रा पैक पैकिंग चाहिए, जो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1 महीने तक प्रोडक्ट को सिक्योर रखे। तो इस किस्म का पैकिंग मशीन अगर अमूल वाले को चाहिए, तो वो ढूंढता है कि टेट्रा पैकिंग करने वाली मशीन या कंपनीज कौन सी है, वो आपकी कंपनीज के पास आता है। लकीली आप इस किस्म की प्रोडक्ट बनाते हैं, आप ऐसी मशीन बनाते हैं जो प्रोडक्ट, दूध को या खीर को टेट्रा पैक बॉक्स में डाल सकता है। तो आपके पास आता है, आपको पूछता है कि ये मशीन बना सकते हो, तो आप उसको कंसिडरेशन में लेते हो, आप उनके पास जाते हो, आप उनको पूछते हो कितना लीटर खीर आपको पैक करना है, कितने दिन में करना है, कितने दिन तक रहे इस किस्म का पैकिंग चाहिए, कैस किस्म का, कितने लेयर्स का टेट्रा पैक चाहिए, वो आप इस किस्म पे आप कंसिडर करते हो, आप डिस्कशन करते हो, दैट इज कंसिडरेशन। फिर उसके बाद वो अब सिर्फ आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस किस्म का मशीन बनाते हैं, तो आपको सबके साथ, वो सब अमूल वाला सबके साथ बात करता है, लेट्स सपोज 5 लोगों से बात कर रहा है, तो 5 लोगों से बात करता है, आपका प्रोडक्ट उसको ज्यादा अच्छा लगा, वो आपसे ज्यादा बात करता है, तो वो इंटेंट, जैसे आप कंसिडरेशन के नीचे यू कैन सी इंटेंट देता है कि यस मुझे आपका मशीन पसंद है। ओके, सो फिर इवेल्युएशन करता है, आपको पूछता है कि कितने में आप मशीन बेचोगे। यू सेड भाई हमारा मशीन तो है, यूनिक है, इतने फीचर्स है, इतने प्रोडक्ट है, इतने साल की गारंटी वारंटी है, फ्री सर्विसेज है, मैं सर आपको ये $40,000 में बेचूंगा। ओके, अमूल वाला बोलता है तो भाई $40,000 बहुत ज्यादा है, मुझे तो भाई सालों साल मशीन चलाना है, मुझे तो आगे अमेरिका में नहीं, रशिया में भी बेचना है, थाईलैंड में भी बेचना है, तो तुम थोड़ा मशीन को सस्ता करो, या फिर थोड़ा मुझे डिस्काउंट दो, या फिर कुछ फ्री बीज दो। देन यू डू नेगोशिएशन ऑन दैट टर्म्स। सो दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन। एक इवेल्युएशन हो जाता है, और फिर एंड में परचेस होता है, दैट एट द टाइम वो अमूल वाला फिर आपसे मशीन परचेस करता है। आप एंटरप्रेनर हैं, आपकी कंपनी है, तो इस तरह से आप किसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, या फिर आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो इस तरह से आप अपनी कंपनी के लिए वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नाउ सेल्स 2 प्रकार का होता है, एज यू कैन सी, इज B2C एंड अदर वन इज B2B। नाउ B2C इज बिजनेस टू क्लाइंट और बिजनेस टू यूजर। आपका कोई क्लाइंट है, तो आप उसको प्रोडक्ट डायरेक्ट क्लाइंट को जाके बेचते हैं। जैसे पार्ले जी बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट बनता है और सीधा हम लोग उसके कंज्यूमर है, हम लोग उनके क्लाइंट है, हम लोग उसको खरीदते हैं। ओके, तो दैट इज B2C, डायरेक्ट क्लाइंट के पास प्रोडक्ट जाता है।
नाउ दैट इज B2B टाइप बिजनेस। अगर मैं सपोज कोई ऐसी मशीन बनाता हूँ जो आटा गूंदती है, लाइक फ्लार गूंदती है, फिर चक्की, आटा चक्की है जो आटा पीसती है। पार्ले जी बिस्किट बनाता है, उसको आटे की जरूरत होती है, तो पार्ले जी कहीं से गेहूं खरीदता है, अब उसको एक चक्की चाहिए, एक ऐसा मशीन चाहिए जो आटा गूंद दे। तो इन दैट केस वो किस किस्म की मशीन लेगा, वो आटा गूंदने की चक्की खरीदता है। तो उस मशीन, जब वो इस किस्म की मशीन खरीदता है, तो तो ये आप पार्ले जी, पार्ले कंपनी को मशीन बेचते हो। अगर आप चक्की बनाते हो तो आप पार्ले जी को वो चक्की बेचोगे। दैट इज B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अल्टीमेटली बनने वाला तो बिस्किट है, लेकिन आप बिस्किट नहीं बना रहे हो, आप बिस्किट बनाने के लिए यूज में आने वाली मशीन बेचते हो। दैट इज B2B। अब we will discuss about how to conduct BD in real market। अभी रियल मार्केट में आप बिजनेस डेवलपमेंट कैसे करोगे? अभी हमने देखा, स्लाइड में देखा, बुक्स में देखा, इंटरनेट पे आप पढ़ोगे, विकिपीडिया पे देखोगे, सो सब वहां पे लिखी लिखाई बातें हैं, लोग लिख रहे हैं क्या है ये है। अब यहाँ पर है वेर आई एम शेयरिंग योर माई एक्सपीरियंस कि किस तरह से होता है इन रियल वर्ल्ड। जब आप रियल वर्ल्ड में आओगे, अपना कंपनी डालोगे, तो किस तरह से उसको यूज करोगे। मार्केटिंग जो BD का पार्ट है वो हमेशा दो फेज में होता है। फर्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड द अदर वन इज ओल्ड मार्केटिंग, दैट जो अभी इतने सालों से चल के आ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग अभी नया है। फेस टू फेस या ऑफलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, ऐसे कई सारे नाम है। तो हम लोग जैसे इस चार्ट में बताए, फेस टू फेस, दैट इज ये ऑरेंज कलर में जो है, दैट इज फेस टू फेस या पुराने किस्म का मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, उसको ऑरेंज कलर में दिखा है। एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव दिस इन ब्लू कलर, और आई कैन से डार्क ब्लू कलर, विच इज ऑनलाइन मार्केटिंग, जो अभी डिजिटल नया मार्केटिंग है। सो किस किस्म का मार्केटिंग होता है? मार्केटिंग में होता है नेटवर्किंग, आपको अपना नेटवर्क बनाना है। स्पीकिंग, आपको लोगों से जाके बात करनी है। मीटिंग, आपको लोगों से जाके मिलना है। प्रिंट पब्लिकेशन, आपको अपने फ्लायर्स बनाने, बड़े बड़े पोस्टर्स जो आप देखते हो रोड के साइड, वो दैट इज प्रिंट पब्लिकेशन। डायरेक्ट मेल्स, आजकल ये नहीं होता है, आजकल ईमेल्स आ गया है, इसीलिए डायरेक्ट मेल, आपके घर पे कोई लेटर नहीं आता है जिसमें लिखा होता है भाई आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदिए, ये क्रेडिट कार्ड खरीदिए, ये बैंक का खरीदिए, या इस किस्म का पंखा अपने घर पे लगाइए। सो इस किस्म का डायरेक्ट मेल आजकल नहीं होता है। वी हैव फॉरवर्डेड टू ईमेल्स, वी हैव फॉरवर्डेड टू व्हाट्सएप। सो ये तो अब निकल ही गया पिक्चर में से। देन यू डू कोल्ड कॉल, आपको जो कॉल्स आते हैं ना डेली बेसिस पे बैंक से, या फिर अभी आजकल आपको काफी सारे कॉल्स आते होंगे यूडेमी से, काफी सारे कॉल्स आते होंगे, बहुत सारी जगहों से आपको कॉल्स आते हैं, या फिर बजाज की कंपनियों से कि भाई सर आपके पास बजाज की गाड़ी है तो आप इसका इंश्योरेंस करवाइए, या फिर एक फ्री सर्विस आके हमारे पास करवाइए, हमारे पास सर्विस हम आपको करके देंगे। तो इस किस्म के कॉल्स आते हैं आपको। तो दो कॉल्स आर कॉल्ड कोल्ड कॉल्स, जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हो, बस आपके पास नंबर होता है, नाम होता है, फोन उठाते हो, उसको कॉल करते हो। तो दैट इज फेस टू फेस, पुराने किस्म का मार्केटिंग ट्रिक है ये। प्रिंट एडवर्टाइजिंग, अगेन प्रिंट पब्लिकेशन, प्रिंट एडवर्टाइजिंग इज सेम थिंग। यहाँ पर आप फ्लायर्स बनाते हो, न्यूज़पेपर में अपनी एड देते हो, मैगजीन्स में अपनी एड देते हो, दैट इज प्रिंट एडवर्टाइजिंग। एसोसिएशन एंड ट्रेड शोज, हमने देखा होगा काफी जगहों पे ट्रेड शोज होते हैं, काफी ग्राउंड्स में, जैसे पोलो ग्राउंड में काफी सारे अभी टिबेटियन आते हैं ना, तो दैट इज वन काइंड ऑफ ट्रेड शो, वो लोग अपना प्रोडक्ट आके बेचते हैं। काफी सारे अंकलेश्वर, काफी सारी अहमदाबाद में काफी सारे ट्रेड शो होते हैं, जहाँ पे सब लोग अपना मशीन लेकर आते हैं, सब लोग अपने प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। एक बड़े से ग्राउंड में या बड़े से हॉल में आपको छोटा 3x3 का एक कैबिन मिलता है, वन साइडेड ओपन होता है, एक छोटी सी शॉप जैसा आपको कैबिन मिलता है, जहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखते हो, लोग आते हैं, आप उनको दिखाते हो, समझाते हो। तो जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो प्रोडक्ट जाके वहां से खरीदता है, या जिसको जो प्रोडक्ट बेचना है वो वहां आके अपना प्रोडक्ट मार्केट कर पाता है या बेच पाता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रेड शो एंड एसोसिएशन। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द न्यू, जो अभी मार्केट की डिमांड है, दैट इज सोशल मीडिया, वेबिनार, फोन, ब्लॉग्स, ऑनलाइन पब्लिकेशन, ईमेल, सर्च, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ग्रुप, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। ओके, मुझे इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि गूगल पे आप सर्च करते हो शूज, और सीधा आपके पास लिंक आ जाती है कि अमेजोन से ये शूज खरीदो, फ्लिपकार्ट से ये शूज खरीदो, मोबाइल लिखा, मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट। दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, वो आपको एक एडवर्टाइजिंग गूगल पे ही देता है। अब सपोज आपने अमेजोन की वेबसाइट खुली, वहां जाकर आपने एक जैकेट पसंद किया, अब आप फेसबुक खोलते हो तो फेसबुक पे भी आपको वो जैकेट दिखता है, तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, वो एक फॉलो बैक मार्केटिंग स्किल्स है।
तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ईमेल्स आपको आते रहते हैं, फ्लिपकार्ट पे नया प्रोडक्ट आया ईमेल ले लो, naukri.com के ईमेल्स आते रहते हैं। गूगल सर्च में आपको काफी सारे एडवर्टाइजमेंट आजकल दिखती है। वेबसाइट एनहेंसमेंट, आप खुद की वेबसाइट इस तरह बनाते हो कि आप जैसे कुछ सर्च करो कि भाई आई एम लुकिंग फॉर वैक्यूम मशीन, तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट आए, तो उस किस्म का वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन होता है। देन कंटेंट मार्केटिंग, आप बहुत सारे ब्लॉग्स आप देखते हो जहां पे आप कुछ लिखते हो और उस ब्लॉग पे आपको उस ब्लॉग की लिंक मिलती है जहाँ पे आपको काफी सारी एडवर्टाइजमेंट देखने मिलती है जहाँ पे उस प्रोडक्ट के बारे में काफी सारी चीजें लिखी होती है, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। गूगल एडवर्ड्स, आपको पता है अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, लाइक सपोज आप आगे जाकर एक मोटर बाइक या फिर एक कोई मशीन बनाते हैं, तो आप उस गूगल के साथ आप टाइप कर सकते हैं। गूगल को आप जाके बता सकते हैं कि भाई अगर कोई वैक्यूम ट्रांसफरिंग मशीन ढूंढे तो सबसे पहले आप मेरा नाम लो। तो अगर आप कोई लिखता है वैक्यूम ट्रांसफरिंग मशीन, कोई लिखता है वैक्यूम या ट्रांसफर या मशीन, तो आप सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट दिखाओ, दैट इज गूगल एडवर्ड्स। तो आपको अपने नाम वहां पे रजिस्टर कराने पड़ते हैं, आपको गूगल को पेमेंट देना पड़ता है कि भाई आपका नाम ऊपर आएगा या आपका नाम नीचे आएगा, इस किस्म के। आप जब भी कोई सर्च करेगा तो आपको आपकी वेबसाइट उसको सबसे पहले दिखेगी। तो दैट इज वन थिंग, दैट इज अनदर थिंग इज SEO, which is here, which is social media और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जितने भी सर्च इंजन है उसको ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सर्च इंजन हमारे पास कितने हैं, हमारे पास याहू है, हमारे पास गूगल है, हमारे पास बिंग है। चाइना में जाएंगे तो आपके पास उधर बाइडू है, रशिया में जाएंगे तो येंडेक्स है, ऐसे काफी सारे सर्च इंजन है। तो इस किस्म के सर्च इंजन को आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, जहां पे कोई भी यूजर्स आके कुछ भी सर्च करे तो आपकी इंफॉर्मेशन या आपका प्रोडक्ट उसको पहले दिखे। सो दिस इज ऑल डिजिटल। ये काफी बड़ा टॉपिक है, काफी सारी चीजें इसमें लर्न करने के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए, काफी सारी चीजें समझने के लिए है। ये आप लोग डिटेल में समझ सकते हैं गूगल पे, यूडेमी पे, शो अकेडमी पे, यूट्यूब पे, काफी सारी चीजें समझ सकते हैं। अब आप लोग मुझको भी जानते हो तो आप मुझको फेसबुक, लिंक्डइन पे सर्च करो और वहां पे आके भी आप मुझको इसके बारे में डिटेल आप मेरे पास से भी ले सकते हो। ओके, अभी किन किन लोगों ने ये अमूल की ये इस किस्म के पोस्टर्स देखे होंगे आपने, जब आप मांजलपुर जाते हो ना तो आपको इस किस्म के पोस्टर वो बाहर अमूल डेयरी के बाहर लगे रहते हैं। सो ये एक किस्म का कंटेंट मार्केटिंग है। कंटेंट मार्केटिंग मतलब आप लोगों को ऐसे फोटोज दिखाते हो जहां पे आप लोगों को कनेक्ट करते हो। जैसे अभी चाइनीज को हम बायकॉट कर रहे हैं तो मेड इन इंडिया, एग्जिट द ड्रैगन, ये अमूल वाला बहुत ज्यादा करता है, बहुत फनी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसीलिए मैंने इसको इस स्लाइड में इंक्लूड किया है। तो अमूल का आप देखते हो इस तरह से कि भाई ये इस किस्म के प्रोडक्ट हैं, ऐसे वैसी चीजें हैं। फिर MS धोनी के ऊपर उन्होंने कुछ बनाया है, पॉलिटिक्स सैटायर के ऊपर कुछ बनाते हैं, लोगों को एंगेज करते हैं। तो बैक ऑफ द माइंड जब भी आप चीज देखते हो आपको फनी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है और आपको अमूल भी याद रहता है। तो एक लोगों के दिमाग में ये आइडिया प्लेस करने की एक टेक्निक है। फ्लिपकार्ट के इस किस्म की बच्चों को लेकर जो बड़ा कर मतलब एज ए एडल्ट उनको एक विजिबिलिटी उनके एडल्ट की तरह की जाती है, लेकिन होते वो बच्चे। क्यूट सी एड है, सेल्स अपने नए नए प्रोडक्ट को इस तरह से दिखाते हैं। रणबीर आलिया के साथ भी ये लोग काफी सारे बच्चे लोग इस तरह से आते हैं जो एक एडल्ट की तरह ड्रेसअप होते हैं और दे प्रिटेंड और दे रोल प्ले एज एन एडल्ट। तो इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट आपको एंगेज करती है, कंटेंट आपको एंगेज करता है एक ब्रांड के साथ, एक आइडिया के साथ, एक फनी कंटेंट के साथ। दैट इज नथिंग बट अ मार्केटिंग थिंग। then what is a rails what is how to do sales in रियल मार्केट। आपको कंपनी का एक स्ट्रक्चर समझना पड़ता है कि कंपनी किस तरह से चलती है। तो कंपनी में एक जनरल मैनेजर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, एक CEO होता है जो सबसे टॉप पर बैठा होता है। उसके बाद वहां पे प्रोडक्शन, फाइनेंस, R&D, मार्केटिंग, सेल्स, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है। अब हमारे लिए प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। अगर आप सेल्स करने के लिए निकले हैं, किसी भी कंपनी में जाइए तो वहां पे प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट मीन्स चीजों को लाना या प्रोक्योर करना या खरीदना, उसको परचेसिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कंपनी में देयर इज अ प्रोक्योरमेंट और परचेसिंग डिपार्टमेंट जो बाहर से चीजें खरीदती है कंपनी के लिए। कंपनी बनाई तो कंपनी में क्या क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, कंपनी में मशीनरीज लगती है, कंपनी में लोगों को बैठने के लिए चेयर्स लगते हैं, पेपर्स लगते हैं, लैपटॉप्स लगते हैं, पंखे, एयर कंडीशनिंग, लाइट्स, काफी सारी चीजें लगती हैं। तो ये सारी चीजें प्रोक्योरमेंट या परचेस डिपार्टमेंट खरीदता है। तो अगर हमें कोई चीज किसी कंपनी में बेचनी है तो हमको प्रोक्योरमेंट वाले को टारगेट करना है या उसको मिलना है, उससे जान पहचान बढ़ानी है। एवरी सेल्स पर्सन नीड टू कनेक्ट विद प्रोक्योरमेंट एंड परचेस, जैसा कि मैंने कहा। एक्टिविटीज क्या होती है सेल्स की रियल लाइफ में? फर्स्ट इज मीटिंग प्रोस्पेक्ट, आपको प्रोस्पेक्ट से मिलना है। प्रोस्पेक्ट इज नथिंग जो आपका प्रोडक्ट खरीद सके, उसको प्रोस्पेक्ट कहते हैं। देन यू हैव टू प्रोवाइड ऑफर्स, आपको उनको ऑफर देनी पड़ती है कि सर ये प्रोडक्ट इतने में आपको बेच रहा हूँ, इसके साथ आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, फ्री सर्विस मिलेगी, इतनी गारंटी मिलेगी। यू मेक ऑफर टू देम।
देन यू डू फाइट कंपटीशन। आप एक प्रोडक्ट आप सिर्फ आप नहीं बेच रहे, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, कोई और सस्ते में बेच रहा है, कोई और अच्छा क्वालिटी में बेच रहा है, कोई और अच्छी ज्यादा सर्विस या गारंटी दे रहा है, तो आपको उसको फाइट करना पड़ता है, आपको लड़ना पड़ता है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं ज्यादा एम्फोसाइज नहीं कर रहा। देन यू हैव टू कंफर्म द ऑर्डर। एक बार आपका प्रोडक्ट उनको अच्छा लग गया तो उनसे पैसे लीजिए, अपना प्रोडक्ट दीजिए, ऑर्डर कंफर्म कीजिए और आपका काम खत्म। उसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है, दैट इज पार्टी। आपने अपना काम कंप्लीट किया, कंपनी को पैसे दिलवा दिए, प्रोडक्ट बेच दिया, टारगेट कंप्लीट किया, आपका काम कंप्लीट हुआ, तो पार्टी करना तो बनता है। नाउ ये हमने समझ लिया कि सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट किस तरह से होता है, कैसे होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या रोल्स हैं, किस तरह से इसको रियल लाइफ में लाया जाता है, किस किस्म के मार्केटिंग कैंपेन होता है, किस किस्म का सेल्स होता है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अभी इसको खत्म करने का टाइम है, लेकिन उसके पहले एक इंटरेस्टिंग चीज, जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो लोग आगे जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो रिमेंबर दिस थिंग, प्ले बाय रूल्स बट बी फेरोशियस। रूल्स के साथ गेम खेलिए, रूल्स के साथ लाइफ जिए, लेकिन फेरोसियस बनिए। फेरोसियस मीन्स क्रूअल। आपको ऐसा नहीं है कि भाई लिबर्टी, आराम से जो हो रहा है होने दो, नहीं, आपको अपने आप से एक क्रूअल बनना है, आपको वॉलेटाइल बनना है, आपको वायलेंट बनना है। यू हैव टू बी लाइक, मुझे एक करके दिखाना है या मुझे इस तरह से करना है, बराबर है। फेरोशियस का मतलब यहां तक लिमिट नहीं होता है, मतलब रूल के अंदर। ये काफी नॉटी कोट है जिसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। रूल के अंदर ही रहिए, लेकिन रूल को इस तरह से बैंड कीजिए कि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बी क्रूअल टू योर सेल्फ, बी क्रूअल टू मार्केट, बी क्रूअल टू योर बी क्रूअल टू योर सराउंडिंग। आपको इन शॉर्ट शाना बनना है, ग्रीडी बनना है, मतलबी बनना है, लेकिन रूल्स में रहकर। ये नहीं कि आप रूल्स के बाहर जाकर कुछ काम करें। एवरी बिजनेसमैन इज अ ग्रीडी पर्सन। वो ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन एक बाइंड ऑफ रूल के साथ। ये ना हो कि आपके बिजनेस से किसी और को नुकसान हो या किसी और को प्रॉब्लम हो। इस किस्म का बिजनेस नहीं करना है। बिजनेस करना है, लेकिन एक फेरोशियस वे में करना है। इसको लिखा है फिल नाइट ने, या फिल नाइट ने इसको कहा है। फिल नाइट वो है जिन्होंने नाइक शूज बनाए हैं। नाइक शूज जो आप मार्केट में देखते हो या पहनते हो, फिल नाइट्स ने बनाया है। ओके, सो इस कोट को थोड़ा दिमाग में रखो। ज्यादा फेरोशियस वे में भी नहीं जाना है, लेकिन बिजनेस को एक लिमिट तक अच्छी तरह ग्रीडी वे में या क्रूअलिटी के वे में बढ़ाना है। जितने आप अपने आप से क्रूअल होंगे, जितना आप अपने आप को बैंड करेंगे, उतना आप अपने फ्यूचर में, करियर में आगे बढ़ेंगे। अपना बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, जो भी हो, रूल्स के अंदर रहना 100% जरूरी है, लेकिन थोड़ा अपने आप को बैंड करना है, थोड़ा अपने आप पे क्रूअल होना है, अपने आप को ज्यादा संघर्ष करवाना जरूरी है। फील नाइट ने काफी अच्छा कहा है। थैंक यू सो मच टू फील नाइट। नाउ थोड़ा टाइम बचा है, इसीलिए मैंने ये स्लाइड रखा था। ये स्लाइड में कुछ नहीं है, हम लोग थोड़ा बिजनेस टेक्निक्स बताएंगे कि किस किस्म के बिजनेस मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट इज, यहाँ पे 6 है, मैं आपको पहला वाला बताता हूँ, दैट इज रेजर ब्लेड। रेजर ब्लेड टेक्निक इस किस्म से होता है जैसे जिलेट मशीन इसको लेती है या फिर प्रिंटिंग मशीन लेती है। वो आपको जिलेट का रेजर अगर आप मार्केट में खरीदने जाओ तो रेजर, नॉट द ब्लेड्स, सिर्फ रेजर। रेजर आता है 150 रुपए का या 100 रुपए का, लेकिन ब्लेड्स आती है 300 रुपए की या 500 रुपए की। तो अगर आपने एक बार रेजर खरीद लिया तो आपको उसी की ब्लेड्स लगानी पड़ेंगी। समझ रहे हो, आपने सस्ता रेजर तो खरीद लिया है, लेकिन अभी यूज करना है ना, जो कंज्यूमेबल है वो बार बार लगा के महंगा महंगा खरीदना पड़ेगा। दैट इज रेजर ब्लेड टेक्निक। हेवल्ट एंड पैकार्ड प्रिंटर्स, ये जो प्रिंटर्स आते हैं, वो प्रिंटर काफी सस्ते होते हैं। प्रिंटर की कॉस्ट होती है 2,000-3,000 रुपए, लेकिन उसकी इंक 4,000-5,000 रुपए की आती है। अगर एक बार जो प्रिंटर खरीद, आपको उसी की इंक खरीदनी पड़ती है। आर यू गेटिंग दिस? अभी रिसेंटली भी हमने ये देखा है, जियो मोबाइल्स, जियो ने कार्ड सबको फ्री में दिए कि लो रखो, अब सर्विसेज के कॉस्ट आपको देने हैं, है ना। तो ये मतलब एक किस्म का ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे लोगों को एंगेज करवा दिया जाता है और फिर उसके ऊपर उसे और ज्यादा सर्विसेज देकर उनसे और ज्यादा पैसा निकलवाया जाता है। तो दैट इज वन मॉडल। मल्टी लेवल मार्केटिंग, हमने ईबीस का नाम सुना है, ओएसिस का नाम सुना है। इसमें कुछ होता नहीं है, आप मेरे से प्रोडक्ट खरीदो 10,000 की, और
और 4 लोगों को खरीदवाओ। इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, इसको पिरामिड मार्केटिंग बोलते हैं। तो इस किस्म के मार्केटिंग में काफी सारे यंगस्टर्स को मैंने देखा है, वो जुड़ जाते हैं, R15 लेकर घूमते हैं। सो इससे थोड़ा दूर भी रह सकते हो, इसमें थोड़ा इन्वॉल्व होना है तो थोड़ा सोच समझ के इस योर माइंड आप इन्वॉल्व हो सकते हो। ये एक किस्म का मार्केटिंग है। देन निकल एंड डाइम मार्केटिंग, ये एयरलाइन बिजनेस लेती है। मतलब आप किसी इंडिगो फ्लाइट का टिकट खरीदिए, फ्लाइट की टिकट है 2000, लेकिन आप इंडिगो फ्लाइट के टिकट सस्ते में खरीद लीजिए 2000 में, जहां पे आपको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से मुंबई जाने के लिए। लेकिन अगर आपको फ्लाइट में प्यास लग गई, आपको कुछ खाने का मन हो गया, तो पानी की बोतल की कीमत है 200 रुपए और 10 रुपए की मैगी की कीमत है 150 रुपए। सो दिस इज निकल एंड डाइम। मतलब आप उनको डाइम वाली, डाइम मतलब निकल एंड डाइम कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पे निकल एक सस्ता मेटल है और डाइम एक महंगा डायमंड है। तो उस किस्म से आप महंगी सर्विस सस्ते में खरीदते हो, लेकिन छोटी छोटी चीजें फिर आपको महंगी पड़ती है। सो दैट इज निकल एंड डाइम। नेटवर्क इफेक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, सोशल मार्केटिंग से आप अपना बिजनेस चलाइए। ओके, जैसे सोशल मीडिया है वो नेटवर्किंग पे चलता है, ज्यादा से लोगों को कनेक्ट करना, लिंक्डइन ये नेटवर्किंग पे चलता है, ये भी किस्म का बिजनेस मॉडल है। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल, फ्रीमियम बिजनेस मॉडल जैसे आपका पबजी गेम, पबजी आपने फ्री में इंस्टॉल कर लिया, खेल रहे हैं आराम से, फ्री में खेलिए। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर वेपन चाहिए, पर्टिकुलर कार्ड चाहिए, रॉयल पास चाहिए, तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। दैट इज फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। ये काफी सारी चीजों में देखने मिलता है। मोबाइल के या फिर पीसीस के एंटीवायरस फ्री में मिलते हैं, लेकिन फिर उसको हर साल अपडेट करवाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। दैट इज फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। तो ये अलग अलग किस्म के 5 बिजनेस मॉडल हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। और आई बिलीव यहाँ पर आई हैव फिनिश्ड माय सेशन। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, यू गाइस आर नीडेड फॉर द नेशन। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। आप आगे जाके जो भी करेंगे उससे आपकी हेल्प तो होगी, आपके सिटी की हेल्प होगी और आपके कंट्री की भी हेल्प होगी। सो बी वेरी कंसिस्टेंट, स्टे मोटिवेटेड और हेल्दी रहिए। आई एम साइनिंग ऑफ, अर्पित जायसवाल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। Thank you, sir. This is a very informative session. Thank you. I hope all the students have cleared their doubts. Okay, we are concluding our session here. Thank you very much for joining us. Thank you. Thank you so थैंक much. यू, थैंक यू, थैंक यू जीवा, थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir.